اردو مثنوی کا سماجی و تہذیبی پس منظر۔ تعارف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادب انسانی جذبات و احساسات کا مظہر ہوتا ہے اور اس کا مرقع بھی۔ ہر شاعر و ادیب کے ذہنی رجحان کی تشکیل اس کے عہد کے ادبی مذاق، سیاسی تغیرات، سماجی اور تہذیبی کشمکش اور تہذیبی تحریکات و رجحان سے ہوا کرتی ہے۔ جب ہم کسی شاعر یا ادیب کے شعری اثاثے اور اس کی دیگر تخلیقات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس شاعر کے عہد کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی پس منظر سے واقف ہونا چاہیے تاکہ شاعر و ادیب کی تخلیقات کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ نیز یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہندوستانی سماج اور اس کی تہذیب و ثقافت پر کہاں کہاں کے اثرات ہیں، کیونکہ ہندوستان کئی صدیوں تک مغلوں اور انگریزوں کے زیر تسلط رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی سماجی اور تہذیبی زندگی میں کافی کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جو اردو مثنویوں کے مطالعے سے واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ سبق کا مقصد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ملک کی اپنی سماجی اور تہذیبی شناخت ہوتی ہے جس سے وہ ہر جگہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اردو مثنویوں میں جن سماجی اور تہذیبی و ثقافتی عناصر کو پیش کیا گیا ہے ان عناصر کی تلاش و جستجو سے قبل یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جن کے تحت مثنویات تحریر کی گئی۔ اردو مثنویوں میں سماجی و تہذیبی پس منظر سے قبل ہندوستان کی خاصیت یہاں کے لوگوں کی طبیعتیں، ماحول، طرز زندگی، ان کے طرز بود و باش، ان کے جذبات و احساسات، ان کے زبان و بیان، خیالات، روایات، رسم و رواج اور طرز اظہار کیا تھے، ان سب پر اجمالاً روشنی ڈالی جائے گی۔ ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک میں اس کی تمام صورتحال کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہاں صرف اس پس منظر کو پیش کیا جائے گا جس میں اردو مثنویاں وجود میں آئیں۔ اردو مثنویوں کا سماجی و تہذیبی پس منظر۔ ادب اور تہذیب کا گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ شاعری نہ صرف دلی جذبات کا اظہار ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنے عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی حالات کی آئینہ دار بھی ہوتی ہے۔ یوں تو ہم ادب کی دوسری اصناف میں بھی متعلقہ عہد کی تہذیبی جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن مثنوی ایک ایسی صنف ہے جس میں اس عہد کی بھرپور رنگا رنگ تصویر نظر آتی ہے۔ اس لیے جب ہم ہندوستان کے عہد قدیم کے سماجی اور تہذیبی پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر کس قدر مختلف خطوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ہر حصے کا الگ الگ حکمراں بھی ہوتا تھا، ہر علاقے کی بولیاں بھی الگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی تھیں، رسم و رواج بھی الگ تھے۔ مذہبی اعتبار سے بدھ مذہب نے ہندوستانی تہذیب کی سیرت اور اس کی صورتحال کو اس قدر بدل دیا کہ وہ ایک نئی تہذیب بن گئی جسے بدھ مت تہذیب کہا گیا، مگر ہندوؤں نے اپنے مذہب میں چھوا چھوت اور ذات پات کی ایسی قید لگائی کہ ہندوستان کی ایک بڑی آبادی تہذیب و ثقافت کے ارتقاء اور ذہنی نشو و نما سے محروم ہو گئی۔ لیکن اس عہد میں جو تہذیبی نقش ملتے ہیں وہ فن مصوری، سنگ تراشی اور فن تعمیر وغیرہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہر عہد کی سماجی اور تہذیبی صورتحال کا معیار اس عہد کے بادشاہ، امراء اور اوصا کے طرز معاشرت کو گردانا جاتا تھا۔ عوام و خواص کی زندگی کا محور بادشاہ کا طرز بود و باش اور اس کی نشست و برخاست ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان میں نئی تہذیب و تمدن کی داغ بیل محمود غزنوی کے بعد ہی پڑنے لگی تھی، لیکن بعد میں جیسے جیسے سلطنتیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں ان میں ہند اسلامی تہذیب کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ تہذیبی اور سماجی تبدیلی اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے۔ دکن اور شمال کے فرما رواؤں اور حکمرانوں نے اردو زبان و ادب کی خوب آبیاری کی۔ ابتدائی زبان و ادب کا بیشتر سرمایہ شاعری ہی کی رہین محنت ہے۔ اس عہد میں زیادہ تر شاعری مثنوی کے فارم میں کی گئی کیونکہ مثنوی ایک ایسی صنف تھی جس میں کسی بھی واقعے کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس عہد کی بیشتر مثنویوں میں سماجی اور تہذیبی صورتحال کا کھل کر اظہار ہوا ہے۔ اردو مثنویوں میں سماجی و تہذیبی عناصر کی کار فرمائی۔ ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک کے تمام تر خد و خال پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں اور نہ ہی اس ملک کی تمام تر صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں صرف اردو مثنویوں میں سماجی و تہذیبی عناصر کی کار فرمائی کی چھان پھٹک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां उमूमन 3 तरह के मौसम का ज़िक्र मिलता है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, मगर मुल्क में मौसम की कैफियत यकसा नहीं रहती बल्कि बदलती रहती है। यहाँ की आबो हवा पर मानसून हवाओं का बड़ा असर होता है। एक ज़राअती मुल्क होने के नाते यहाँ की सरसब्ज़ी व शादाबी का इन्हिसार मानसून हवाओं पर ही है। शुमाली हिंदुस्तान में उन हवाओं की वजह से काफ़ी बारिश होती है, जिसकी वजह से बरसात का वो खुशगवार मौसम होता है जिसका ज़िक्र अक्सर मसनवियों में मिलता है। हिंदुस्तानी शायरी पर यहाँ के दरियाओं, फसलों और नबातात का भी असर देखने को मिलता है। जगह जगह हमें गंगा जमुना के तक़द्दुस, ब्रिज, मथुरा और बनारस के अशनान का तज़किरा और इसी तरह दूसरी तरह की तलमीहें और इशारात मिलते हैं। फसलों, फलों और बागात का तज़किरा है। मौसमों के लिहाज से हिंदुस्तान के त्यौहार बनाए गए हैं जिनका तज़किरा अक्सर मसनवियों में मिलता है, जिनमें होली, बसंत, दिवाली, सावन वगैरह का बयान अपनी कई खसूसियात के सबब अहम है। उसके अलावा कई मसनवियों में नेचर से मुताल्लिक़ पेड़ पौधे, दरिया, नदी, बागात, झरने, चरिंद परिंद का भी तज़किरा मिलता है। सैयद अकील रिज़वी ने इस तफसील का ज़िक्र करते हुए लिखा है, कोट, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कारामद जानवर भेड़, बकरी, घोड़े, भैंस और गाय हैं। गाय हिंदुस्तान का बड़ा मुक़द्दस जानवर है। तज़किरों से ब्रिज भाषा की शायरी भरी पड़ी है। कृष्ण जी गाय चराते हैं, गोपियाँ ग्वालिनें हैं। गाय का दूध देवताओं के स्थानों पर छिड़का जाता है। हिंदुस्तानी गाय की बड़ी इज्जत करते हैं। परिंदों में काज, राजहंस, मोर, बगुले, बत, पपीहे, कोयल, कौवा, तीतर, बटेर, सारस, कुरकुरे और दूसरी मुर्गियां हैं जिनके बेशुमार तज़किरे मसनवियों में मिलते हैं। मीर हसन के बाग में ये तमाम परिंदे नज़र आते हैं। मीर की मसनवियों में मुर्ग, बिल्ली, बकरी के तज़किरे मिलते हैं। फूलों में ख़ास तौर पर गेंदा, बेला, चमेली, मालती, नवाड़ी, मदनबान, आम के बौर, तुलसी, सरसों, सदाबहार वगैरह। बाहर से आने वाली कौमों के साथ इन फूलों में से भी कई एक आए और उनके अलावा भी शब्बू, जाफरी, लाला, दाऊदी, मोतिया और नरगिस, नसीर, नस्तरन वगैरह के नाम ज़्यादा मशहूर हैं। मज़कूरा बाला जानवरों, फूलों, फलों और चरिंद परिंद के अलावा उर्दू शायरी ख़ास तौर पर उर्दू मसनियों पर यहाँ की मुआशरत, यहाँ के मज़हब और तमद्दुन का भी असर पड़ा। मुसलमानों और हिंदुओं के आपस के मेल जोल ने एक दूसरे पर उनके रस्म व रवाज, रवायात और फ़नून लतीफ़ा वगैरह पर भी असर डाला। इन सब का असर उर्दू मसनवियों पर भी पड़ा। माक़बल में इस बात का ज़िक्र किया गया कि उर्दू मसनवियों में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों में जाड़ा, गर्मी और बरसात हर एक का अलग अलग बयान माँ उनकी कैफियत और खसूसियात के मिलता है, लेकिन मौसम की कैफियत का बयान बारहमासा में खसूसियत के साथ किया गया है। बारहमासा अफजल झुंझानवी, बारहमासा सुंदरकली, इलाह बख्श वगैरह में मौसमों की कैफियत के अच्छे नक्शे हैं, जिनमें सावन, भादो, पूस, माघ, फागुन हर एक का अलग अलग तज़किरा है। इन तज़किरों में ऐसे बयानात हैं जिनसे पढ़ने वाले के जहन में उन मौसमों की कैफियत अच्छी तरह वाज़े हो जाती है। मसलन फागुन के महीने में होली खेलने का तज़किरा है। कार्तिक के महीने में दिवाली का ज़िक्र मिलता है। सावन के महीने में औरतें अपने घरों में झूला डालकर जिस तरह सावन के गीत गाती हैं और उस महीने में अपने पिया से मिलने को तरसती हैं, उसका इजहार किस तरह करती हैं, सुंदर कली के 12 मासा से सिर्फ 2 शेर मुलाहिज़ा कीजिए। सखी सब घर बघर झूला लगावें, वो आपस में सभी खुश रंग गावें, अधेरी रैन मुँह बिजली कड़कती, कड़क से उसके यूँ छाती धड़कती। इस तरह मसनवियों में त्योहारों का ज़िक्र हो या मज़ाहिब का, यहाँ के मौसमों का ज़िक्र हो या नदियों का या जंगलों और चरिंद परिंद का, हिंदुस्तानी मौसीकी का ज़िक्र हो या मुआशरे में राइज कहावतों और ज़रबुल अमसाल का, ये सब ऐसे अवामिल व अनासिर हैं जिनसे खालिद हिंदुस्तानी तहज़ीब का खाका तैयार होता है। मसनवी दर बयान सावन से यहाँ के कीड़े मकोड़ों और परिंदों के हवाले से ये अशार मुलाहिज़ा कीजिए। पपीहा प्यू प्यू निस्दिन पुकारे, पुकारे दावरो झींगुर झंगारे, अरे जब कूक कोयल ने सुनाई, तमामी तन बदन में आग लाई, अंधेरी रात जुगनू जगमगाता, अरे जलती के ऊपर फूस लाता। मज़कूरा बाला अशार से हिंदुस्तानी तहज़ीब व मुआशरत का जो खाका तैयार हुआ है वो एक तरह से यही है,
लेकिन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ त्योहारों का ज़िक्र अफ़ज़ल ने अपनी मसनवी बिकट कहानी में जगह जगह किया है। उसने इस मसनवी में त्योहारों का ज़िक्र महीनों की मुनासबत से किया है। इस ज़िम्न में ये अशार देखिए, कनागत न्योरती जब पी जमावे, महर करके तुझे देखे बुलावे, सलाम अस तरफ़ ये गमखार कीजो, पगुन को पर्स पाती हाथ दीजो, दशहरा पूजती घर घर सखी रे, करम मेरे न जानूँ क्या लिखी रे। मज़कूरा बाला अशार में कनागत कुंवार महीने का अधेरा पाक कहलाता है। इसमें मुर्दों के इसाले सवाब के लिए पंडितों की ज़ियाफ़तें की जाती हैं। निवृत्ति को आमतौर पर नवरात्र कहते हैं। कुंवार के महीने में ही नवरात्र और दुर्गा पूजा होती है और दशहरा का मौका भी यही होता है। इस तरह देखिए तो बिकट कहानी में हिंदुस्तानी तहज़ीब पूरी तरह चलती फिरती नज़र आती है। इसी तरह फ़ाइज़ दहलवी की मसनवियों में भी हिंदुस्तानी समाज और उसकी तहज़ीब व मुआशरत का नमूना जगह जगह मौजूद है। उनकी मसनवियों में तारीफ़ पनघट, बयान मेला बहता, तारीफ़ जोगन, तारीफ़ तबूलन, तारीफ़ होली काबिल ज़िक्र हैं। तारीफ़ पनघट से सिर्फ 2 शेर मुलाहिज़ा कीजिए। ले आती थी जजरिया एक सुंदर, ले जाती थी गगरिया शीश पर धर, सबन की रंग रंग लहंगा वो सारी, किनारे उनके थी टाँकी किनारी। उर्दू शायरी में जिस तहजीबी और समाजी पस मंज़र को पेश करने की ज़रूरत होती है वो उस अहद के रस्म व रवाज, त्यौहार और शादी के अलावा मजहबी अफ़कार और नज़रियात वगैरह हैं। त्योहारों से मुताल्लिक़ रस्म व रवाज उस अहद की तहजीबी और समाजी पस मंज़र को मुकम्मल तौर पर पेश करते हैं। होली जो हिंदुओं का एक ख़ास त्यौहार है, उसकी तफसील बहुत से शायरों ने अपने अपने अंदाज में पेश की है, मगर चंद अशार मीर की मसनवी होली से मुलाहिज़ा कीजिए। फिर लबालब हैं आब गिर रंग, और उड़े है गुलाल किस किस ढंग, खान भर भर अबीर लाते हैं, बत्ती मिला उड़ाते हैं, जश्न नवरोज़ हिंद होली है, राग रंग और बोली ठोली है। मीर शेर अली अफसोस ने भी एक मसनवी बहार सुखन लिखी है जिसका मौजू आसफुद्दौला की होली है। इस मसनवी में तकरीबन 229 अशार हैं। इस मसनवी में अफसोस ने होली का मंज़र बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया है, जिससे होली की मुकम्मल तफसीलात मसनवी में दर आई हैं। इस मसनवी के चंद अशार मुलाहज़ा कीजिए। वज़ीर ज़मा आसिफ़ नामदार, चमनज़ार में खिलता है धमार, कहीं गालियों का बधा है गाझाड़, किसी तरफ गेंदों की है मार धाड़, बुझी है ये होरी पड़ा है ये खेल, हर एक तरफ है रंग की रेल पेल, उड़े थे अबीरो गुलाल इस कदर, किसी को ना आती थी सूरत नज़र। इस तरह बहुत से शायरों ने होली का जिक्र किया है, लेकिन मीर की मसनवियों में जिस तरह हिंदुस्तानी त्योहारों और शादी के रस्म व रवाज पर रोशनी पड़ती है, उसी तरह मौत से मुताल्लिक जो समाजी रस्में हैं उसका जिक्र भी मिलता है। मसलन मुर्दे को जलाने की रस्म खालिस हिंदुस्तानी है। इस सिलसिले में मीर की मसनवी शोले शौक़ से सिर्फ 2 शेर मुलाहिज़ा कीजिए। ज़मी पर से आखिर उठाया उसे, लबे आप जाकर जलाया उसे, जब आग उसके पैकर पे सब छा गई, मोहब्बत अजब दाग दिखला गई। इसी तरह सती की रस्म भी खालिस हिंदुस्तानी है। इसमें शौहर के इंतकाल पर शौहर के साथ उसकी बीवी को भी जला दिया जाता है। इस रस्म ने 7वीं और 8वीं सदी में बहुत तरक्की कर ली थी। औरतें कसरत से शौहरों की मौत के बाद सती हो जाती थीं। वैसे इस अहद में सभी बेवाओं के लिए सती होना लाजमी था, लेकिन 19वीं सदी के चौथे दहे के आसपास इस रस्म की मुखालफत की गई और इस पर पाबंदी भी लगा दी गई। इस रस्म का जिक्र भी कई मसनवी निगारों ने किया है, लेकिन यहाँ सिर्फ मीर की मसनवी इश्किया से चंद अशार मुलाहिज़ा कीजिए। जलाने की तैयारी करने चले, चली ज़नबिस्ता साथ उसके जले, लगी जलने छोड़ा नासरार को, खबर पहुँची उस नौ गिरफ्तार को, कहा हमको क्या कहती हो इस घड़ी, नज़र उसकी जलते जो उस पर पड़ी, कहा आए हो तो चले आओ तुम, शताबी करो जो हमें पाओ तुम। मज़कूरा समाजी रस्म के अलावा दीगर मसनवियों के मुताले से आप उस अहद के इंसान की अखलाकी अबतरी व बरतरी का भी अंदाज़ा कर सकते हैं। मसलन मीर के ज़माने में कुछ भी अच्छा नहीं था, हालात बद से बदतर थे। ना तो सियासी और समाजी हालत बहुत अच्छी थी और ना ही माशी निज़ाम बहुत बेहतर था, क्योंकि वो ज़माना दिल्ली की तबाही और बर्बादी का था। ऐसे में अखलाकी निज़ाम भी दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। बादशाह, वज़ीर और अवाम व ख़वास सब के सब दरोगोई से काम लेने लगे थे। अवामी उमूर में झूठे वादों से काम चलाया जाने लगा था। इन्हीं उमूर की तरफ मीर ने अपनी मसनवी दरबयान किस्म में तफसील से इशारा किया है। इस हवाले से यहाँ सिर्फ 2 शेर मुलाहिज़ा कीजिए। ऐ झूठ आज शहर में तेरा ही दौर है,
शेवा यही सबों का यही सब का तौर है। ऐ झूठ तू शियार हुआ सारी खल्क का, क्या शह का क्या वज़ीर का क्या अहले दल का। इसके अलावा उस ज़माने की समाजी सूरत हाल का नक्शा मीर ने अपने मसनवी नसंगनामा में इस ढंग से खींचा है कि सारा मंज़र आँखों में फिरने लगता है। मसलन सौम व सलात का पाबंद ना होना, आदत व अतवार में बेढंगापन होना, बात की इब्तिदा गालियों से करना, तरह तरह का गैर अखलाकी अमल करना, ये तमाम बुराइयां उस अहद की ख़ास तौर से नसंग के इलाके की समाजी सूरत हाल को वाज़े करती हैं। मगर समाज में जहाँ एक तरफ अखलाकी बदतरी का जिक्र मिलता है तो वहाँ दूसरी तरफ बुलंद अखलाकी भी पाई जाती है। मीर की मसनवी इश्किया के हीरो का किरदार बुलंद अखलाकी की आला मिसाल भी पेश करता है। ये अशार देखिए, हिकायत है इश्की हिकायात में कि अफ़गां पिसर एक गुजरात में, जमा खुश तब पुरकार परहेज़गार, बहुत हुस्न उसके वाँ इश्तिहार, रहे महो पाव की इज़गी वो सलात, न हो तर्क सहवन कभी वाजबात, खुशंदाम खुशरो व पाकीज़ खू, कसो वक्त रहता न था बेवजू, ज़बा नर्म ताले वरी वो सलाह, न तंजो किनाया न रमज़ो मज़ा। इसी तरह मौसम बरसात जो हिंदुस्तान को की बहार कहलाता है, इस मौसम में अब्र कई दिनों तक आसमान पर छाया रहता है। इस मौसम में इतनी कसरत से बारिश होती है कि आदमी घर से नहीं निकल सकता। ऐसे मौसम में गरीब और मफलूकुल हाल घरों और बस्तियों की हालत क्या होती है वो मीर की इस मसनवी से अंदाज़ा कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने घर की हज लिखी है। मौसम बरसात में उस घर की क्या हालत हुई उसका पूरा नक्शा खींच दिया है। मौसम बरसात का बयान सौदा, कायम और नज़ीर के अलावा दूसरे शायरों के यहाँ तो हुआ ही है, लेकिन मीर के यहाँ उसका कुछ और ही रंग नज़र आता है। अपने घर की बदहाली का नक्शा खींचने के बाद मौसम बरसात में उस घर की क्या हालत हुई मीर के लफ्ज़ों में सुनिए। क्या थमे में सकफ़ छलनी तमाम, छत से आँखें लगी रहे हैं मदाम, झाड़ बांधा है मेह ने दिन रात, घर की दीवारें जैसे हैं गिपात, ईंट मिट्टी कदर के आगे ढेर, गिरती जाती है होले होले मुंडेर, क्योंकि सावन कटेगा अब की बार, थर थरावे भंभेरी सी दीवार। मौसम बरसात में ये तो अपने घर की तबाही और बर्बादी का नक्शा खींचा है, लेकिन एक दूसरी मसनवी दर मजम्मत बरशगाल की 12 साल बिसियार शुदा में मौसम बरसात की पूरी मंजरकशी की है। इस मसनवी से वही शख्स लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है जो हिंदुस्तान का बाशिंदा हो या कम अज़ कम जिसने हिंदुस्तान की बरसात देखी हो। इस मसनवी से चंद अशार देखिए और ख़ुद ही फैसला कीजिए। क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जोश बारां से बह गई है पात, माहो खुर्शीद अब निकलते नहीं, तारे डूबे हुए उछलते नहीं, बूंद थमती नहीं है अब की साल, चरख गोया है आब दर गुरबाल, जैसे दरिया उबलते देखे हैं या सुपर नाले बर चलते देखे हैं। वही यकसां अधेर बरसे है, आसमां चश्मे वाको तरसे है, अब्र रहमत है या की जहमत है, एक आलम गरी की रहमत है, हर तरफ है नज़र में अब्र सियाह, पानी है जिस तरफ को करिए निगाह। इस तरह मीर नवियों में मौसम के ज़िक्र के अलावा बहुत सी समाजी और तहजीबी रवायतें ऐसी मौजूद हैं जिनके मुताले से उस अहद के सोसाइटी की तारीख़ मुरतब करने में बहुत मदद मिलेगी। उनकी ज़ात और माहौल से मुतालिक बहुत सारी मालूमात भी मिलेंगी। मसलन बादशाह और उमरा की शादी का ज़िक्र, इनाम व इकराम का तरीक़ा, अरबाब निशात के नाच और रंग की महफ़िलें, शादी का जुलूस, बारात का चढ़ना, हाथियों की सजावट, फ़ौज का बारात के साथ चलना, आतिशबाजियों का ज़िक्र वगैरह, ये सब चीज़ें मीर की मसनवियों में जा बजा नुमायाँ हैं। आसिफ़ुद्दौला की शादी के सिलसिले में सिर्फ 2 शेर देखिए। शब शादी की धूम की क्या बात, रोज़ रोशन थी रोशनी से बारात, 2 तरफ छूटते जो हैंगे अनार, राहो रस्ते हुए हैं बाग व बहार। इसी तरह अमीर की मसनवी बहराम व हुस्मानों में एक जगह शादी का समा इस तरह बांधा गया है। क्या फ़र्श ज़र्री सुहर ठार पर, बनाए महल सारे गुलजार पर, बिछे कालीना बीच ऐवान के, धरे तकिए बगली बड़े शान से, बहुत भात सू सारे मसनत किया, जवाहर के रासों सुजीनत किया आप पाशी वहाँ हर जमा, वो शाम छिड़का हुए बेगुमा। इसके अलावा शौकीन सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की शादी के मौके पर जो मसनवी मेज़बानी नामा के नाम से लिखी थी, उसमें दावत का अहतमाम, जश्न की रंगारंगी, शादी की धूमधाम, महल्लात की सजावट, रक़्स व सुरूद की गर्म बाजारी, आतिशबाजी की गर्मी, बाजों का शोर वगैरह इस खूबी के साथ नज़म किए गए हैं कि उस वक्त के जश्न और शादी ब्याह के मौके पर मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज का नक्शा सामने आ जाता है। उस ज़माने के रस्म व रवाज
और गर्मी महफिल की रफ्तार शायर की तब रवां की जौलागाह बन गई थी और उसने अपनी शायरी में उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को समेट लिया है। उसके अलावा दक्कन के मसनवी निगारों में वजदी का नाम भी अहम है, जिसने एक मसनवी मखज़न इश्क कही जिसका साल तसनीफ़ 1145 हिजरी के मुताबिक 1732 ईस्वी है। इस मसनवी में भी शादी के समा का तफसीली बयान है। उसके अलावा अब्दुल ने एक मसनवी इब्राहिम नामा लिखी। उसमें अब्दुल ने अपने इर्द गिर्द शाही महलात, महफिल रक़्स व सुरूद और हाथी घोड़े सभी कुछ देखे थे, इसलिए उसने अपनी मसनवी में अराबो हिसारो महल, पाए कूबान दरबार, नौरस महल, मजलिस, शिकार, हाथी घोड़े, लश्कर बाग, हंगामे बहार वगैरह सब पर तबाज़माई करके अपने ज़माने के रस्म व रवाज और समाजी और तहजीबी रवायत पर भरपूर रोशनी डाली है। इसी तरह मुसफ़ी ने कई मसनवियाँ तहरीर की, लेकिन सिर्फ़ बहरुल मोहब्बत को ही मकबूलियत मिली। ये मीर की मसनवी दरियाए इश्क का चरबा और उसकी बाज़गश्त मालूम होती है। इसी तरह मीर की मसनवी शोले इश्क के तदब्बुर में मुसफ़ी ने जज्ब इश्क लिखी। मुसफ़ी ने उसमें जिस तरह की रियायत लफ्ज़ी का अहतमाम किया है, उससे एक तरह की बेलुत्फ़ी सी पैदा हो गई है। बीवी की मौत उसके जिस्म के एक एक ज़ेवर को गमो अलम में मुब्तला कर देते हैं। जितने ज़ेवर उस दौर में पहने जाते थे, उन सब का तज़किरा मुसफ़ी ने इस मसनवी में किया है, जैसे नथ, कड़ा, बिरकियाँ, मोतियों की माला, खलखालें, सर का तावीज़, जुगनू, चौदानियाँ, झुमके, किरण फूल, दस्तबंद, बाजूबंद, बालियाँ, मेल, सुरमा, सुरमादानी वगैरह जैसी आराइश व ज़ेबाइश की चीज़ों का ज़िक्र मिलता है, जिससे उस अहद के समाजी और तहजीबी रख रखाव और रहन सहन का पता चलता है। चंद अशार मुलाहज़ा कीजिए। वो जो होता है ज़ेवर एक इदराज, सर बसर लुट गया था उसका राज, देख चंपा कली को खून रोती, सर पटकते थे मांग के मोती, चाँद रहता था वो ज़ेब जबीं, नाल मातम बना था हो के हज़ीं, करके पाँव की उंगलियों को याद, बिछुए करते थे दम बदम फरियाद, तिस्पा अनोट का था जो हाल ज़बूं, हो गया था बरंग हल्क निगूं। जिस तरह मुसफ़ी ने मीर की मसनवियों का ततब्बो किया, उसी तरह रासिख़ खसीमाबादी की मसनवियों में मीर का ततब्बो नज़र आता है, लेकिन जो असर अंगेज़ी मीर की मसनवियों में है वो उनके यहाँ मफ़क़ूद नज़र आती है। हुस्न इश्क, कशिश इश्क, जज्ब इश्क, एजाज़ इश्क, गंजीने हुस्न वगैरह इसी कबील की मसनवियाँ हैं जिनमें मीर का परतो नज़र आता है। मीर की तरह रासिक के यहाँ भी जावजा समाजी और माशरती हक़ाइक़ भी पेश किए गए हैं, लेकिन उनमें वो तनव्वुर नहीं है जो मीर के यहाँ है। मसनवी कशिश इश्क से चंद अशार पेश किए जाते हैं। नहाती थी खुर्शीद अनवर की तरह, तन उसका चमकता था गौहर की तरह, आया अक्स रू उसका यूँ आब में, नज़र आवे खुर्शीद जूँ आब में, बयां क्या करूँ उसके जलवे की लाग, कहे तू कि पानी में लागी है आग, तमाशाई थे उसके शैदाए हुस्न, कि करती थी मौजें वो दरियाए हुस्न। रासिक ने उस ज़माने की तहजीबी मुरक्काकशी इस तरह की है कि उस ज़माने में मर्द और औरत का एक दूसरे से मिलना और उनसे कलाम करना मायूब समझा जाता था, इसलिए उस ज़माने में एक दूसरे से मिलने के इम्कानात कम हुआ करते थे। ऐसे माहौल में आशिक व माशूक खिड़कियों से झाँक कर एक ही नज़र में एक दूसरे पर जान छिड़कने लगते थे, फिर मेलों ठेलों में मिलने के बहाने तलाश किए जाते थे, या कोई सरेराह चलते फिरते महव नज़ारा हो जाया करता था, या फिर दरिया में स्नान करते हुए देख लेता या पनघट पर बैठे हुए देख लेता तो दिल दे बैठता। रासिक ने झेल के अशार में कुछ यही नक्शा खींचा है। रही बैठ तू तो निचिंत अपने घर, ये बेखानमा आह जाए किधर, शहर गए जो तू आज आई नहीं, तो सुन लीजियो ये किसी से कहीं, कि दरिया पे एक बेवतन मर गया, मुसाफिर था आखिर सफ़र कर गया। इसी तरह सादत हसन यार खां रंगीन देहलवी ने तकरीबन 44 से ज़ायद मसनवियाँ तहरीर की हैं, जिसमें इश्किया, हजविया, मदहिया, रज़मिया, अखलाक़ी, तहजीबी, समाजी और आरिफाना सभी किस्म की मसनवियाँ शामिल हैं। उनकी सबसे अच्छी मसनवी दिल पज़ीर है। इस मसनवी में माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर पाए जाते हैं, लेकिन मसनवी गुलज़ार नसीम में माफ़ौक़ुल फ़ितरी किरदार और ईरानी क़िस्से के बावजूद हिंदुस्तानी अनासिर की मौजूदगी इस बात पर दाल है कि शायर अपनी तबीयत और जहनी साख्त के मुताबिक अशिया और तनाजुर में हम आहंगी कायम कर लेता है। इस तरह मज़कूरा वाला मसनवी निगारों के अलावा सौदा, रंगीन, कायम, मीर, मीर असर, रासिख, मोमिन, ज़ौक़, इंशा, रंगीन, मीर हसन, नसीम, शौक़ और जलाल वगैरह से लेकर आज़ाद, हाली, शिबली और शाद से लेकर इकबाल, सरदार जाफ़री और कैफ़ी आज़मी तक
ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے مختلف موضوعات پر مصنوعات تحریر کی ہیں۔ ان سب کے مطالعے سے اس عہد کی سماجی اور تہذیبی صورتحال کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔